تو آسمان میں تھوکنا شروع کر دیتے ہیں. اور سب سے بڑا دوش یہ کیمرے چل رہے ہیں ٹنکی کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں علماء کی توجہ کے ساتھ بزرگوں کی دعائیں ہیں. ہم لوگ اس بات کا دوش دیتے ہیں صاحب ہم حکومت ہمارے خلاف حکومت یہ کر رہی ہے. ارے حکومت کیا کر رہی ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں مائک میں ہم ذمہ دار ہیں اس بات کے. آپ کو نماز پڑھنے کون سی حکومت نے روکا؟ کیا بات ہے، بے شک، واہ 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 واہ. کسی نے روکا آپ کو؟ ہماری مساجد خالی. کیا ہم مالدار ہیں؟ کسی حکومت نے ہمیں زکات دینے روکا؟ ہمارے پاس گنا ہو گیا. لوگ تو یہ سمجھے بیٹھے ہیں نا کہ صاحب عشر صرف دھان کا دے دو گیہوں کا دے دو بات ختم. ارے بھائی جو زمین اگاتی ہے اس پر عشر ہے. بارش کے پانی سے ہوا تو 10واں حصہ، اگر ٹیوبویل سے ہوا، اگر آپ کے سمرسیبل سے ہوا تو 20واں حصہ دینا پڑے گا. ارے علماء بیٹھے ہیں بالکل ذمہ داری کے ساتھ. عشر کا مسئلہ زکات سے زیادہ ٹیڑھا ہے، زکات سے زیادہ سخت ہے. اگر آپ پر قرض ہے تو آپ پر زکات نہیں، لیکن آپ کی کھیتی میں پیداوار ہوتی ہے. آپ اگر سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک بھی قرض میں ہے تب بھی آپ کو اس کا عشر دینا پڑے گا. میں نے حضرت کے جلسے میں تقریر کی تھی، وہاں بھی یہ کہا تھا ہماری قوم، غور سے سن کے جانا سب لوگ، ہماری قوم مسلم اگر صرف زکات اور عشر دینے لگے نا تو مسلمانوں میں کوئی ہاتھ پھیلانے والا نہیں ملے گا. ہاتھ پھیلانے والا یہ مدرسے چلا رہے ہیں نا ہم رات دن لانتے سن کے، یہ ہمارے کلیجے سے پوچھے آپ. ہمیں ذرا سا قوم کا آدمی کچھ بھی کہہ دیتا ہے جناب ہم صبر کر رہے ہیں. ہمیں کوئی چندے والا، کوئی دھندے والا، کوئی یہ کوئی وہ. خدا کی قسم اگر ہم نے ہاتھ پاؤں چھوڑے گا تو کوئی تمہیں نماز پڑھانے والا بھی نہیں ملے گا. حق ہے، بہت خوب، بہت اچھی. کوئی بچوں کے کانوں میں اذان پڑھنے والا بھی میسر نہیں آئے گا. بے شک. ان علماء نے اگر ہمت ہار لی تو جنازے تڑپتے رہیں گے، ایسے ہی پڑے رہیں گے، کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا بھی میسر نہیں آئے گا. حق ہے. اللہ کے واسطے ان مدرسوں پہ نگاہ مارے، ان مدرسوں کو دیکھے، ان کے لیے اپنے خزانوں کے منہ کھولے، اپنی تجوریوں کے منہ کھولے. آپ بے شک. اللہ کی رضا کے لیے دیکھیں گے. ہمیں کس نے روکا کہ ہم زکات ادا کریں؟ ہمیں کس نے روکا ہم ماں باپ کے قدموں میں نہ جائیں؟ ہمیں کس نے روکا ہم بزرگوں کی تعظیم و توقیر نہ کریں؟ ہمیں کس نے روکا ہم مائی کا حق ادا نہ کریں؟ ہمیں کس نے روکا کہ ہم بہن کے گھر نہ جائیں؟ ہمیں کس نے روکا ہم اپنے بچوں کی تربیت کو بہتر نہ بنائیں؟ ہمیں کس نے روکا کہ ہم مذہب اسلام پہ عمل نہ کریں؟ اب انسان تقریریں بھی انسان اپنی طبیعت کی سننا چاہتے ہیں، شریعت کی سننا نہیں چاہتے. یہ بات طبیعت کی بات کی جائے تو بہت بڑھیا بہت بڑھیا. اگر شریعت کی بات آ جائے، ایمان کی بات آ جائے تو ارے یار یہ باتیں صحیح نہیں ہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ طبیعت چاہتا ہے بنتا. اور یقین جانے کہ صحابہ اکرام کی ساری زندگی صحابہ اکرام کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری میں گزر گئے. یہ بیٹھے ہیں سجادہ نشین، ان کے بابا باپ دادا وہاں آرام فرمائے. میں بھی کم از کم 50 تقریریں تو میں نے رجب پور میں کر لی ہوں گی. میرے استاد ذی وقار حضرت حافظ و قاری محمد عاصم صاحب قبلہ اشرفی، ان کا کرم ہے، وہاں کی مسجد کے امام. اچھا آپ کیوں جاتے ہیں رجب پور صاحب؟ کیا بات ہے؟ بابا بہاؤالدین رضی اللہ تعالی عنہ نے، سیدی سرکار شاہ ولایت رضی اللہ تعالی عنہ، قاری عبداللطیف صاحب قبلہ نور اللہ مرقدہ، حافظ لطف الرحمان صاحب قبلہ نور اللہ مرقدہ، ان کی قبروں پر کیوں جاتے ہیں آپ؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزاری تھی. اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبتیں ڈال دی. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی قدم خلاف شرع نہیں. اپنے خزانے کے منہ انہوں نے اللہ کی یاد کے لیے کھولے تھے. اور آج ہمارا عالم یہ ہے اگر کچھ کہا جائے تو طرح طرح کی باتیں. ارے قرآن سنیے، قرآن اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. جو اللہ کی بارگاہ میں ایک دیتا ہے پروردگار عالم 10 عطا فرماتا ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کی بارگاہ میں دینے والا
अल्लाह की बारगाह में ताबेदारी करने वाला कभी नुकसान में नहीं जाता। हाँ, एक जुमला कहता हूँ, मुसलमानों की अगर आपको मालदारी देखनी हो ना, मुसलमानों की मालदारियां तो शादियों में जाकर देखिए कि मुसलमान कितने मालदार हैं। और अगर मुसलमानों की गरीबी देखनी हो तो मस्जिद और मदरसे के चंदे में देखिए कितने गरीब है मुसलमान। शादी के माहौल में तो जोड़े भी बीवी के, बेटियों के, माँ के, बहू के 5-5, 10-10 हजार के जोड़े, हजारों खुराफात हमने जमा कर ली है, कभी मेहंदी के नाम पर, कभी रस्मों के नाम पर। और अल्लाह अकबर, माअज़ अल्लाह, ये बातें तो सारी बात की हैं। जब रिश्ता तलाश करते हैं ना कारी साहब, तो जब तक 10-15 जगह नाश्ते ना लगा ले कलेजे को चैन नहीं आता। हम लोगों को सरकार दो आलम नूर मुजस्सम ने इरशाद फरमाया, तुनकाहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा वलिहस्बिहा वलिजमालिहा वलिदीनिहा फस्कुर बिज़ातिद्दीन तरिबत यदा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। मेरे नबी ने कहा, सुने गौर से, आका ने फरमाया किसी औरत से, किसी लड़की से निकाह 4 वजहों से किया जाता है। 4, उसके माल की बुनियाद पर, कि लड़की मालदार है, बड़े बाप की बेटी है, माल मिलेगा करो। दूसरी वजह उसके हसब और नसब की बुनियाद पर, कि बड़े बाप की बेटी है, इसके बाप का नाम रोशन है, इसकी बेटी से निकाह करोगे तो इज्जत मिलेगी, जमाने में नाम होगा। 2, तीसरी उसके हुस्न की बुनियाद पर, कि लड़की बड़ी खूबसूरत है, देखने भालने की बड़ी अच्छी है, चलो हमारे घर में जचेगी लड़की के साथ करो। 4, उसके दीन की बुनियाद पर, कि लड़की दीनदार है, घर में नेकी आएगी, घर में अल्लाह ताला का करम आएगा, चलो बेटे का निकाह करो, अल्लाह बरकत देगा। ये तो इंसान की बात। अब नबी का मशवरा सुने। नबी ने फरमाया, ओ मेरे सहाबा सुनो, फज़फुर बिज़ातिद्दीन, तुम तरजीह हमेशा दीन वालों को दिया करना। बेशक। क्यों? अरे कोई खूबसूरती है, किसी के पास लड़की हसीन है, हो सकता है जल जाए, चेहरा खराब हो जाए। बड़े बड़े इज्जत वाले हमने देखा कि जिनके सामने लोग जुर्रत नहीं करते थे, आज वो दुनिया में जलील और रुस्वा कर दिए गए। बेशक, हक है। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के इख्तियार है ना। कुरान का भी फैसला है, वो तो इज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहे इज्जतें देता है, जिसे चाहे जिल्लतों में मुब्तला करता है। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत खूब। अरे अगर मालदारी की बुनियाद पर किसी से निकाह करोगे तो हो सकता है कि अल्लाह लम्हे भर में फकीर बना दे। लेकिन मेरे नबी ने कहा, ओ मेरे सहाबा सुनो, रहती दुनिया तक के मेरे उम्मतियों सुनो, तुम हमेशा तरजीह दीन को देना, कि दीन कभी कम नहीं होता, अल्लाह पाक उसमें बरकतें देता है। और नबी ने कहा, अगर तूने दीन को तरजीह ना दी तो अल्लाह तेरे हाथों को खाकालूद कर दे। अल्लाह। मेरे नबी ने नाराजगी का इजहार किया। शादियों में 20-20, 30-30 लाख रुपए खर्च करने वालों, जरा इन मदरसों पे निगाह मारो, इन मदरसों पे। मेरे आका ने तो यूं कहा, इन्नल आलिमा वल मुतअल्लिमा मर्रा अला क़रियतिन इन्नल्लाह यरफ़उल अज़ाब तिलकल क़रियत 40 यौमा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। मेरे नबी ने कहा, एक आलिम बाअमल, एक मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा अगर किसी कब्रिस्तान के रास्ते से भी गुजर जाए, परवरदिगार आलम उसका 40 रोज का अज़ाब उठा लेगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। क्या समझ रहे हैं आप अमरोहा वाले, कि मौलाना रईसुद्दीन नूरी साहब का इदारा है, आप इन बच्चों को खाना खिला रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ आप अच्छी नेकी कर रहे हैं, लेकिन कोई एहसान नहीं, क्योंकि यकीनन ये उलमाए अहले सुन्नत ने लिखा, इस बच्चे को खाना खिलाना, इसको कपड़े पहनाना, इसको प्यार करना, इसको जूता पहनाना, इसको सीने से लगाना, आपको दुनिया में भी फायदा पहुंचाएगा, कल कयामत के रोज भी फायदा पहुंचाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो रुपया हमने मदरसा मदारिस इस्लामिया में खर्च किया जी, इन हाफिज कुरान पर, कारी कुरान पर, तो यकीनन वो कामयाब। सब लोगों की तवज्जो हो तो एक हदीस, अब तकरीर बिल्कुल आखिरी पढ़ाओ। कयामत के रोज अल्लाह पाक फरमाएगा, जन्नतियों के फैसले करेगा, जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में। अब अल्लाह ताला जन्नतियों से फरमाएगा, ओ जन्नतियों जन्नत में चले जाओ, जन्नती जन्नत में चले जाओ। तो जितने भी आबिद हैं गैर आलिम, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में भेजेगा, तुम जाओ। हदीस में है, कहे जरा मचल के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
जब आलिम जाना चाहेंगे उलमा अहले सुन्नत, अल्लाह पाक फरमाएगा रुक जाओ, तुम रुको। उलमा कहेंगे परवरदिगार हम क्यों रुके, क्या मामला? सब लोग जन्नत में चले गए हैं, अल्लाह हमें भी जाने की इजाजत दी जाए। आवाज आएगी, ओ मेरे नबी के दीन का काम करने वालों, अकेले क्यों जा रहे हो? अरे उनका क्या होगा जो तुमसे मोहब्बतें किया करते थे? वाह वाह उनका क्या होगा जो तुम्हारे लिए अपने खजानों के मुंह खोला करते थे? उनका क्या होगा जो तुम्हें कभी खाना खिलाते, कभी प्यार करते, कभी अपने घर में बुलाते, कभी मुसाफिर करते, कभी कदमों को चूमते, कभी हाथों को चूमते? आते, आओ मौलाना खुर्शीद साहब मेरे मकान में आए, आओ अल्लामा साहब मेरे मकान में आए, आओ सैयद साहब मेरे मकान में आए। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाएगा ओ दीन के खादिमों, जो तुमसे मोहब्बत करता था सबका हाथ पकड़ो और जन्नत की बहारों में ले जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती आसिफ साहब किबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत ऐसा नहीं है क्या कहते हैं, जिंदाबाद कि जिंदाबाद। हमारी कोई खिदमत रायगा चली जाए, बेशक हमारा कोई रुपया, हमारा कोई खिदमत करना रायगा चले जाए। नहीं, कयामत में आपको मुकम्मल फायदे के साथ ये उलमा वापस करेंगे। बेशक इनकी बड़ी शान होगी। हाफिज के बारे में तो अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अल्लाह उसे जन्नत में भेजेगा, फरमाएगा कुरान पढ़ता जा और अपने अहबाब को जन्नत में लेता जा, सुभान अल्लाह सुभान तरक्कियों अल्लाह। की मंजिल चढ़ता जा। ये हदीस में है, तरक्कियों की मंजिल चढ़ता जा। नेमते उज़्मा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, ये अल्लाह का इनाम है। और मैं भी एक इदारा पढ़ाता हूँ, यकीनन हिंदुस्तान के कई सूबों से कई ऐसे मकाम हैं जहां मेरे पास फोन आते हैं कि मुफ्ती साहब आप एक इदारे में पढ़ाते हैं, मेरे मामला कि हमारे यहाँ कोई आलिम ही नहीं, कोई मदरसे के बच्चे ही नहीं, आप इदारा पढ़ाते हैं, हम आपके खाते में 1000, 2000, 500, 200 जैसे जिसकी हैसियत होती है डाल रहे हैं और आप अपने बच्चों को तकसीम कर दें, बच्चों की खिदमत करते हैं। कितना करम है अल्लाह का कि इदारे चल रहे हैं हमारे इलाके। जहां देखो उलमा की जमात देखी, आपने जलसा कराया, शायद जितने आप पे इतनी हमारे स्टेज पर बैठे। ये अल्लाह का करम है, अल्लाह की मेहरबानियां हैं। लिहाजा अपने खजानों के मुंह इन मदारिस इस्लामिया के लिए खोलें, अल्लाह राजी होता है। ये हाफिज कुरान जो आज यहाँ से कितने हाफिज हैं? 3 हाफिज कुरान माशाअल्लाह। देखें 3 हाफिज। और मैं तो बड़ा अलल ऐलान और ऐलान के साथ कहता हूँ, इस दौर में एक हाफिज एक कारी अगर करोड़ों रुपए खर्च करके भी बन जाए तो भी सस्ता है। अगर हमें ये कारी खुर्शीद साहब, मौलाना असरार साहब, कारी अहमद हसन साहब, ये हमारे सारे बुजुर्ग बैठे हैं, अगर ये हमें 1 करोड़ रुपए में भी कोई हाफिज बना के दे दें, कारी बना के दे दें तो भी सस्ता लगता है इस दौर में। ये दौर बड़ा अजीब दौर है। अपने गिरेबान में देखें, अपने खजानों के मुंह खोलें। और आज हालांकि मेरी आदत तो नहीं है कभी, आज इस मदरसे के लिए नेमते उस्मा में आने वालों अपने खजानों के मुंह खोलें और इस मदरसे की बेपनाह मदद करें। मैं अब तकरीर मेरी बिल्कुल खत्म है, इस गुजारिश के साथ आप हजरात जो भी लियाकत रखते हैं, मैं किसी पर बोझ तो नहीं डाल रहा कि साहब इतने पैसे आप दें इस मदरसे को। नेमते उस्मा में आए हैं आप क्योंकि आप जलसा सुनने आए हैं, कोई आप यहाँ और किसी काम के लिए नहीं आए, बल्कि आप अपने एतबार से जो भी इस मदरसे की मदद करना चाहें तो आप इस मदरसे की मदद फरमाएं। देखें इंशाअल्लाह आपको यकीनन इसका फायदा होगा। मैंने आपको हदीस सुनाई है सरकार की और कुरान का फैसला भी सुनाया है। अल्लाह ने कुरान में मुतअद्दिद मकाम पर ये भी फरमाया है और अल्लाह ने सखियों के बड़े जिक्र किए हैं। सरकार दो आलम ने भी सखावतों के जिक्र किए हैं। और मेरे सहाबा हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब भी सरकार ऐलान करते अपने खजानों के मुंह खोल देते। मैंने मस्जिद नबवी के बारे में बताया था कि मस्जिद नबवी छोटी सी थी, सरकार दो आलम ने जगह खरीदनी चाहिए, एक यहूदी औरत ने मना कर दिया, हजरत उस्मान गनी ने 15 गुना कीमत देकर फौरन खरीद लिया जमीन को। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये था दीन का जज्बा। आप हजरात भी अपने जज्बों को सलामत रखें और आप हजरात दामे दिरहमे कदम में इस मदरसे की मदद करें। और मैं गुजारिश करता हूं कि आप हजरात मजमे में से जो भी हैसियत रखता है कि बस अब चंद लम्हात में मुफ्ती मोहम्मद शमशुद्दीन साहब क़िबला मकरानी भी राजस्थान की तशरीफ लाने वाले हैं। इंशाअल्लाह आप हजरात को एक अजीम खिताब उनका सुनना पड़ेगा और इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा होगा। बड़ी बेबाक और बड़ी दिल को खुश कर देने वाली तकरीर आप हजरात को सुननी है।
لہذا آپ حضرات اس مدرسے کا تعاون کریں. اور یہ دیکھیں میرا نذرانہ جتنا آیا ہے میں آج سارا نذرانہ اس مدرسے کو بھی دے کر جا رہا ہوں. سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت جشن دستار بندی حضرت علامہ مفتی آصف صاحب قبلہ. آپ حضرات یہ نہ سوچیں کہ مولوی دوسروں سے ہی کہتے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہم سب سے پہلی سب میں کھڑے ملتے ہیں اس معاملے میں. اللہ کا فضل ہے. یہ مولوی حضرات کے بھی منہ کھلے بالکل جیبیں اللہ کے دین کے لیے کھلی ہوئی ہیں. اب حضرات جو بھی آئے گا پیسہ چاہے میرا ہو یا جو بھی آئے گا وہ سب مدرسے کا ہی ہے. ماشاءاللہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ یہ بچہ 100 روپے لے کر آیا ہے. پروردگار عالم بے پناہ اس پر فضل اور کرم فرمائے. محمد نوازش بھائی قائم پور والے وہ 500 روپے مدرسہ کے لیے پیش کر رہے ہیں. پروردگار عالم بے پناہ ان پر کرم اور رحم فرمائے. آمین. آپ حضرات میں امید کرتا ہوں آپ حضرات جو بھی دیں گے تھوڑا تھوڑا بھی دیں گے تو قطرہ قطرہ مل کر دریا بن جاتا ہے. دریا دریا مل کر سمندر بن جاتا ہے. یہ کہا ہے شیخ سعدی علیہ رحمۃ و رضوان نے اپنی کتاب گلستہ میں. دیکھیں ماشاءاللہ آپ لوگوں کی تعداد آنی شروع ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ سبحان قبول اللہ. فرمائے. ماشاءاللہ مرحوم محمد اشرف صاحب کی جانب سے آئے ہیں یہ 500 روپے. اللہ تعالیٰ ان کے ہدیوں کو قبول و منظور فرمائے. محمد گلفام بھائی کو